start. Yes, good afternoon, sir. Good afternoon, all of you. On the behalf of Pragati College of Arts, Commerce and Science, Dombivli, under the placement cell of our college, we organize MPSC and UPSC career guidance seminar. Under this, the great and immense guest lecturer we can say as the Professor Mangesh Naneshwar Borkar, sir. It's our immense pleasure to got a resource person like sir. So before starting with the session, I just like to introduce the qualification, or we can say the short introduction of our respected guest, Borkar sir. I just want to introduce a sir's qualification. Sir not only just a professor, sir is also a qualified with journalist and even qualified with net in history. Also, sir is working director with Sambodhi IS Academy, and even sir is retired CRPF police commander. Sir is also qualified for UPSC and even appeared for mains and UPSC interview. Now, sir is working from 2004 with the director of Sambodhi IS Academy, and with their achievements, sir is working for a social worker for a just promoting and motivating students for IS and MPSC and UPSC exam. Under the guidance of this academy and even with reference to our special guest, there are more 600 and more students were qualified for MPSC and UPSC post. Also got award Sant Ravindra Samaj Bhushan Puraskar, and with the guidance of our guest sir, one of the immense personality like Dr. Ravindra Munde, IPS officer, and even Jay Wagmare, IRS officer. These students are cleared a UPSC exam with first attempts, and many more students that cleared with UPSC attempt in second attempt. So it's our really great pleasure to got a resource person like sir on the behalf of our college, and on the behalf of the principal of our college, Dr. Jyoti Pohane madam, vice principal of Dr. Shendre sir, and under the placement cell of this college, I am welcoming you to attend the whole session. And with this, I would like to hand over the session with you. Sir, please continue. Thank you so much. Yes. Thank you very much, Namrata Malabari madam. Yes, sir. And yes. So thanks a lot to organize this session on the behalf of Pragati Arts, Commerce, Science College. And I have seen name and qualifications of students. So most of the students, they are from first year of different degree courses, BBI, BA. Many are from SY and many are from TY. And this is like a very nice thing for all of you that you people have registered for this session, for this seminar, because nowadays it is very important to know about your career. Okay, like what happened usually, many of the students, they just do or they just complete formality of doing graduation, and they are not. I am audible to all of you. Is my voice is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thanks. Yes. Yes, sir. So what happened in most of the cases, many of the students, they just complete their formality to complete their graduation. Okay. काफी सारे जो स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश में बात करूंगा, अगर किसी को अगर मराठी में बाद में अगर क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ सकते हैं. तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट दे जस्ट डू फॉर्मेलिटी. हम लोग क्या करते हैं कि हम केवल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं. हमारे यहाँ पे एक सेटअप स्टैंडर्ड है. सेटअप स्टैंडर्ड क्या है कि 10th कीजिए, 10th के बाद 12th कीजिए, 12th के बाद फिर ग्रेजुएशन कीजिए, और फिर ग्रेजुएशन होने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट जो करते हैं, दे आर सर्चिंग फॉर जॉब. माय इंस्टीट्यूशन, that is Sambodhi Career Academy, which is also famously known as Sambodhi IS Academy. I have been working, and I have founded this institution unofficially in 2004 when I appeared first time for my UPSC Civil Services, that is IS mains. In the same year, I took my interview also in 2005 batch,
And then I organized first a seminar in my district, okay, that is in Nagpur district of Maharashtra. And many of the students, they attended that seminar. Okay, so since then I started my this it's like a mission, or it's with some different vision to bring up candidates, those who are having caliber, those who are having potential to do something good for this society and for this nation. So कुछ अच्छा करना चाहिए, और अच्छे ऑफिसर्स एक बनाने का जो विजन था वो मेरे मन में था। तो मैंने जब मेरा फर्स्ट मेंस दिया यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, आईएएस का 2004 में, और उसी साल फिर मैंने 2005 में इंटरव्यू भी दिया सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का, और उसी समय मेरा फर्स्ट सेशन जो है मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट नागपुर डिस्ट्रिक्ट में रखा था, और अनऑफिशियली वही से शुरुआत हुई। उसके बाद मेरे प्रयास चालू रहे। ऑफिशियली फिर मैंने मुंबई से स्टार्ट किया। So from Mumbai, I can see that in Mumbai, in my last 14-15 years, more than 14 years experience, what I have seen, कि most of the students from the Mumbai, Thane and Navi Mumbai region, even that Palghar and all this region, they do not go for competitive examinations. Okay. Yesterday only I had a interaction like this interaction with Government Engineering College Amravati, students of the Government Engineering College Amravati. Amravati is a district which is in Vidarbha region of Maharashtra. And many of the students, like almost 300 plus students, they attended my session. And many of the students, they were having interest in doing UPSC or going for IAS examination directly. They are not thinking about bank or this small staff selections or even private jobs. So nowadays, if you compare Mumbai region and the rest of the Maharashtra, okay, if you are focusing on Maharashtra, अगर हम मुंबई रीजन की बात करते हैं और महाराष्ट्र के अलग विभागों की बात करते हैं, तो अभी ये हो रहा है कि महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर तालुका में स्टूडेंट्स की ये मेंटालिटी होती है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, फॉरेन सर्विसेज में जाना है, इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर, कस्टम्स में असिस्टेंट कमिश्नर, या फिर जितने भी बड़ी बड़ी पोजीशंस है उसमें जाना है, या फिर अगर बैंक में भी जाना है, बैंक में भी जॉब करने हैं, तो वो हायर लेवल के, मतलब बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज एंड देन सो मेनी। ओके, सो काफी सारे ऐसी जो एक एस्पायरेशन जो है, तो मुंबई रीजन और जो अदर देन मुंबई है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मुझे दिखता है, बिकॉज फॉर्मली आई लॉन्च माई इंस्टीट्यूशन फ्रॉम मुंबई, and in 14-15 years I made 600 plus officers, okay, government officers and the government employees, and that too from my Sambodhi Career Academy is the only institution from Mumbai and the Thane region where students qualified UPSC civil services examination, MPSC state services examination in a very first attempt. मेरे इंस्टीट्यूशन से, मेरा कालाचौकी में ब्रांच था, मेरा दादर में ब्रांच था, चेंबूर में ब्रांच था, विद्याविहार में ब्रांच था। अभी लॉकडाउन में हमारे 2 ब्रांचेस हमने बंद कर दिए। एक ही हमारा थाने ईस्ट का हमारा ब्रांच शुरू है, जहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स आते रहते हैं, और अभी तो ऑनलाइन चल रहा है। लेकिन हमारे जो ऑफलाइन, मतलब जो हमारे जो अलग अलग ब्रांचेस में जितने सारे स्टूडेंट्स ने कोचिंग लिया है, साल भर का, 6 महीने का, 3 साल का, यूपीएससी के लिए, एमपीएससी के लिए, स्टाफ सिलेक्शन के लिए, बैंकिंग के लिए, उसमें से हमारे 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स आज की डेट में इस देश में, इस राज्य में ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के तौर पे कार्यरत है। उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी है कि हमारे पास जो मुंबई में बाहर से पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, तो ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी का एम रखते हैं या फिर एमपीएससी स्टेट सर्विसेज का एम रखते हैं। ऐसे ही मेरा एक स्टूडेंट था डॉक्टर प्रवीण मुंडे, जो तेरणा मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई से उसने एमबीबीएस किया था, और उसका जो भाई था, बड़ा भाई, वो मेरा बैचमेट रह चुका था यूपीएससी में। नाउ ही इज आल्सो आईपीएस एंड ही इज अ डीसीपी एट पिंपरी चिंचवड़। हमारा यूट्यूब चैनल है आईएएस संबोधि न्यूज, उसके ऊपर उसका जो डीसीपी प्रवीण मंच किप्पर है, उसका एक वीडियो अवेलेबल है। रिसेंटली उसने लेक्चर दिया था मेरे कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस प्रोग्राम पे। तो वो जो प्रवीण मुंडे है, ही ज्वाइन माई इंस्टीट्यूशन एट कालाचौकी इन 2008-2009 and he qualified UPSC in a 2010-11 batch in a very first attempt. So now he is a SP of Jalgaon, Superintendent of Police. देखिए 24वें 25वें साल में जो व्यक्ति
IAS IPS क्वालिफाई होता है वो बहुत बड़े पोजीशन पे जाता है, मैं आपको बताऊंगा आगे। फिर मेरा जय वाघमारे जो IIT मुंबई से जिसने बीटेक एमटेक किया, IIM कलकत्ता से जिसने MBA किया। आप लोगों को शायद पता होगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मुझे MBA करना है, BBA करने के बाद मैं MBA करूंगा, लेकिन आप लोग MBA कहाँ से करते हो? किसी नवी मुंबई के इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी करजत कसारा की इंस्टीट्यूशन से आप करते हो। IIM का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उस लड़के ने IIT मुंबई से शिक्षा प्राप्त करने के बाद और फिर IIM कलकत्ता से शिक्षा प्राप्त करने के बाद बहुत अच्छा पैकेज था उसका, प्राइवेट में बहुत अच्छी जॉब्स थी, काफी अच्छा पैकेज था। मतलब उस समय 2012 में उसका पैकेज कम से कम 16, 17, 18 लाख होगा। वो नौकरी छोड़ के उसने UPSC की प्रिपरेशन की, मेरे पास थाने के ब्रांच में मेरे पास ज्वाइन किया, पर्सनल गाइडेंस लिया, and afterwards he also qualified UPSC civil services examination in a very first attempt। वो खारगर का स्टूडेंट है जय वाघमारे, अभी वो IRS कस्टम्स एंड एक्साइज में है। नाउ ही इज डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एंड एक्साइज एंड रिसेंटली ही शिफ्टेड, ही ट्रांसफर्ड फ्रॉम हैदराबाद टू मुंबई। उसका भी सेशन अभी रिसेंटली हमने पैंडेमिक में काफी सारे ऐसे ऑनलाइन सेशंस लिए जिसमें आपको आप अगर हमारा IAS संबोधि न्यूज जो चैनल है यूट्यूब का, वो अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो उसमें आपको कम से कम 100 से ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे जो फ्री वीडियोस है, अपलोडेड है। और मेरे काफी सारे जो स्टूडेंट जिन्होंने IAS IPS की प्रिपरेशन मेरे यहाँ पे की थी, जो क्वालिफाई हुए थे, जो MPSC थ्रू क्वालिफाई हुए, ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे कुछ बैचमेट्स, मेरे कुछ जूनियर्स, ऐसे काफी सारे कमिश्नर लेवल के, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स के वीडियोस अलग अलग विषयों पे मेरे यूट्यूब चैनल पे है। तो जय वाघमारे का भी एक लेक्चर जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप उस वीडियो को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसमें काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसका नाम IAS संबोधि न्यूज इस तरह से है। तो इसी के साथ जैसे UPSC से हमारे काफी फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट है, सेकंड अटेम्प्ट के रिजल्ट है। डॉक्टर रामदास भी से मेरे यहाँ से सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ। ओके, नाउ सोलापुर में सेंट्रल रेलवे का वो सेकंड चीफ है, मतलब उस हायरार्की में। तृप्ति सांडभोर मेरे यहाँ से MPSC मतलब specifically she joined my institution for UPSC civil services but she qualified MPSC examination as a CO। आपका जो कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है KDMC, वो कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर थी, ओके, कुछ साल पहले। एंड नाउ शी इज एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ पनवेल म्युनिसिपैलिटी। ओके, मतलब देखिए जिसका सिलेक्शन 2009 में हुआ था MPSC के स्टेट सर्विसेज थ्रू, वो स्टूडेंट 2009 से 2021 मतलब 2020 में उसका शी ज्वाइन पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, अतिरिक्त महानगर पालिका आयुक्त पनवेल। तो आप देखिए कि 10 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ है। मतलब शी ज्वाइन एज अ CO, देन शी ज्वाइन एट वेरी डिफरेंट पोजीशंस। शी वाज इवन एट न्यू मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज अ डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर, ओके, and eventually she will get promotion as a commissioner of some municipality also। okay, so ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे कि जिन्होंने UPSC क्वालिफाई किया, MPSC क्वालिफाई किया। और साथ ही साथ स्टाफ सिलेक्शंस कमीशन की एग्जाम्स होती है जिसमें नॉर्मली CGL होती है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की एग्जामिनेशन, जो ग्रुप B ऑफिसर्स के पोजीशंस के लिए होती है। ग्रुप B ऑफिसर्स गैजेटेड और नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स के पोजीशन के लिए होती है। और उसमें और एक एग्जामिनेशन होती है CHSL जो 12th के बेसिस पे, फिर मल्टीटास्किंग MTS 10th के बेसिस पे। तो मल्टीटास्किंग की अभी जस्ट एडवर्टीजमेंट निकली है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम दोज हु आर अटेंडिंग दिस सेशन, so they shown their interest in banking examination, okay, banking। so मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स, मेरे यहाँ से ऐसा रिकॉर्ड है कि मेरे स्टूडेंट्स नॉर्मली क्लरिकल लेवल पे क्वालिफाई नहीं होते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे ऑफिसर लेवल पे क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि मेरे जो इंस्टीट्यूशन का जो ध्येय है वो क्लरिकल लेवल के, मतलब क्लरिकल लेवल को प्रोड्यूस करना या फिर क्लरिकल लेवल पे स्टूडेंट को सिलेक्शन के लिए तैयार करना, ये बिल्कुल ही नहीं है। हम लोग एक मतलब इस तरह से ऑफिसर्स बनाते हैं कि हमारा जो एक ऑफिसर होता है उसके अंडर में काफी सारे लोग काम करे, तो हम बेसिकली ऑफिसर्स बनाते हैं, ऑफिसर्स। ओके, आप सोच सकते हो कि देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ IAS IPS विद द अदर सर्विसेज, ठीक है। तो हमारे यहाँ से बैंक्स में
मैनेजर लेवल पे मेरी अभी एक स्टूडेंट है जिसका जो शी केम टू मी फ्रॉम अकोला, अकोला महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन में एक डिस्ट्रिक्ट है, अकोला से मेरे पास कोचिंग के लिए आई थी. And now she just recently in July 2020, she joined as a manager of Bank of Maharashtra. Okay, so Bank of Maharashtra में उसने ज्वाइन किया immediately, मतलब उसका स्टार्टिंग पेमेंट ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पेमेंट है उसका एज अ मैनेजर. And she studied for competitive examinations for 2-3 years and she qualified bank examination directly manager post पे. मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट होती है, लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट होती है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स की पोस्ट होती है, पीओ की पोस्ट होती है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की वगैरह. तो उसमें से अगर आप किसी भी पोजीशन पे सिलेक्ट हो गए तो आपको बैंक में, मतलब नेशनलाइज्ड बैंक में काफी अच्छी सैलरीज वगैरह होती है. सो फ्रेंड्स, इन दिस सेशन माई सेल्फ मंगेश ज्ञानेश्वर बोरकर, डायरेक्टर संबोधि IAS Academy Mumbai and Thane, and now we are very soon we are opening at Nagpur and Pune also. So मैं आपके साथ जो यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ, so that is related to all competitive examinations of India. Okay, that is related to all competitive examinations of India, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी की एग्जामिनेशन क्या होती है, what is UPSC Civil Services Examination, what are the other examinations of UPSC, that is Central Paramilitary Forces, ठीक है, Assistant Commandant exam. Then at the same time Maharashtra Public Service Commissions की स्टेट सर्विसेज राज्य सेवा परीक्षा, then police sub inspector, cell tax inspector, मंत्रालय ASO exam, then clerical level examination also. Okay, clerical level examination. And for clerical level examination you should have your this thing like what you can say your typing. Okay, then हम लोग बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शंस कमीशंस के बारे में, एसएससी की मल्टीटास्किंग जो 10th बेसिस पे अभी जिसकी एडवर्टाइजमेंट निकली है. उसके बाद हम बात करेंगे CHSL जो 12th के बेसिस पे होती है, और फिर CGL के बारे में हम बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे बैंक एग्जाम्स के बारे में. बैंक एग्जाम्स में क्लरिकल से लेके प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, स्पेशलिस्ट ऑफिसर. इसके ऊपर बात करने के बाद हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे. मेरा जो फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड मैं आपके सामने कंपैरेटिव एनालिसिस प्रोड्यूस करूंगा. क्योंकि क्या होता है कि मेरी तो बहुत इच्छा होती है कि मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और जितना भी ये रीजन है आजू बाजू का, वहां से स्टूडेंट्स IAS बने, IPS बने, MPSC थ्रू डायरेक्टली डेप्यूटी कलेक्टर बने. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे जो मुंबई के जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, मैं इतने सालों में देख रहा हूँ, मैं गाँव में जाता हूँ, छोटे छोटे शहरों में जाता हूँ, तालुका प्लेसेस में जाता हूँ, तो मेरे प्रोग्राम्स में कम से कम 500 to 1000 स्टूडेंट्स होते हैं, और उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एम होता है कि हमें क्लास 1 ऑफिसर बनना है. लेकिन ये मुंबई और ये सबर्बन एरिया इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के बाद भी हमारे पास बड़े एम नहीं है. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे. ओके, आई एम वेरी लाइक, आप में से कुछ लोगों को शायद लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, बट दिस इज अ प्रॉब्लम. हम लोगों के पास एम ही नहीं होता. हम लोग क्या करते हैं कि 10th करेंगे, 12th करेंगे, ग्रेजुएशन नाम के लिए करेंगे, प्राइवेट में सीधे घुस जाएंगे. प्राइवेट में आपको क्या मिल रहा है? आज आपने देखा होगा कि कोरोना पैंडेमिक में जिनको पूरी सैलरी मिल रही थी घर बैठ के या थोड़ा काम करके, वो गवर्नमेंट के सर्वेंट थे, वो स्टेट गवर्नमेंट के सर्वेंट थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट थे, वो बैंक के ऑफिसर्स थे. बैंक भी कौन सी? जो पब्लिक सेक्टर नेशनलाइज्ड बैंक है. बैंक मतलब ये मत समझना कि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये नहीं. दीज आर प्राइवेट बैंक्स. बैंक में मुझसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, देना बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसी बैंक्स. ओके, तो जो भी एम्प्लॉइज है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट बैंक्स के, उन लोगों को पूरी सैलरी मिल रही थी. आज कोरोना पैंडेमिक में मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया कि वो लोग 10-10 साल, 12-12, 15-15 साल प्राइवेट में जॉब्स कर रहे हैं. उनको सैलरी भी ठीक ठाक मिल रहा है, मतलब किसी को 30,000, 35,000, 40,000 भी, लेकिन उनकी नौकरियां चली गई. एविएशन के सेक्टर के जो लोग थे उनकी नौकरियां चली गई, जो टूरिज्म में थे उनकी नौकरियां चली गई, होटल मैनेजमेंट में थे उनकी नौकरियां चली गई, इवन IT सेक्टर के भी काफी सारे लोगों की नौकरियां चली गई, और बाकी तो काफी सारे सेक्टर्स है जिनकी नौकरियां चली गई. इनफैक्ट जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं उनकी भी नौकरियां चली गई. ओके, तो बेसिकली कैसा है ना कि आप लोग
अगर ये करियर सेमिनार अटेंड कर रहे हो तो आप लोग ये बात ध्यान में रखना कि आपका जो ये एज है, ये जो आप फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर का और थर्ड ईयर के बाद 2-3 साल का, दिस इज वेरी प्रोडक्टिव एज, बहुत इंपॉर्टेंट एज है आपका। अगर इसमें आपने कुछ, इफ यू आर लाइक मिसिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड and if you are just wasting your time in unnecessary activities which are not at all associated with your career making process, then at the fag end what you will realize that you wasted your time during your degree period. You didn't bother about your this thing, your career, and you simply wasted your time, है ना। तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा जब आप 30 साल के होंगे, जब 32 साल के, 35 साल के होंगे, जब 40 साल के होंगे, तो आप लोगों को ये शायद समझ में आ जाएगा कि हमारे सेमिनार में कोई सर आए थे, मंगेश बोरकर सर, उन्होंने कुछ बताया था, या फिर आप लोगों को आपके जो टीचर्स रहते हैं, जैसे अभी नम्रता मैडम है यहाँ पे, या फिर अविनाश चंद्रे सर है आपके वाइस प्रिंसिपल वगैरह, तो ऐसे लोग भी, हमारे टीचर्स भी हमें बताते रहते हैं कि बी सिंसियर अबाउट योर करियर। लेकिन क्या करें कि हम लोग सुनते ही नहीं, हम लोग उस एज में सुनते नहीं है, हमें अच्छा जो बताने वाले होते हैं उनका सुनते नहीं है। अच्छा, सुन भी लिया तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऐसी चीज है कि आप लोगों ने समझ लिया कि आईएएस कैसा बनना है, आईपीएस कैसा बनना है, एमपीएससी थ्रू डिप्टी कलेक्टर डीवाईएसपी किस तरह से बनना है, ओके, स्टाफ सिलेक्शन थ्रू ग्रुप बी लेवल का ऑफिसर कैसे बनना है। 43 डिपार्टमेंट है स्टाफ सिलेक्शन थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उसमें ग्रुप बी लेवल के ऑफिसर्स कैसे बनना है, ये आपने समझ लिया। बैंक में किस तरह से नौकरी मिलेंगी ये भी समझ गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ईपीएफओ है, ईएसआईसी है, काफी सारे गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के। बट अल्टीमेटली व्हाट हैपन कि आपने उस पर काम ही नहीं किया, आपने उस पर काम ही नहीं किया, आपको समझ तो गया लेकिन आपने काम ही नहीं किया। तो आपके लिए दूसरा कोई आने वाला नहीं है। नोबडी विल कम टू यू, नोबडी विल कम फॉर लाइक nobody will come and solve your पेपर आपको ही सॉल्व करना है। जो भी मतलब what you can say, जो भी ये एग्जाम जो देनी है वो पास होने के लिए जो कोशिश करनी है वो आपको ही करनी है, आपके सिवाय कोई दूसरा कर नहीं सकता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि केवल सुनना नहीं है, इसके ऊपर अमल करना है। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट, इतने 15 इयर्स में मैंने ये की, और हम लोग जब थे, व्हेन वी वर इनटू कंपटीशन, मुझे कम से कम 1.5 साल लगा महाराष्ट्र में हमारे टाइम पे, व्हेन आई क्वालिफाइड माय इंजीनियरिंग डिग्री। ओके, मैडम ने वो एक मिस कर दिया, बेसिकली आई एम इंजीनियर बी इंस्ट्रूमेंटेशन। व्हेन आई क्वालिफाइड माय बी इंस्ट्रूमेंटेशन in 2000, I did not find any guidance regarding UPSC civil services examination in Maharashtra. आज जो लोग बड़े बड़े कमिश्नर के लेवल पे है, दे आर ऑल माय बैचमेट्स इन महाराष्ट्र। जो भी लोग कमिश्नर है महाराष्ट्र के, काफी सारे म्यूनिसिपालिटीज में वगैरह, वो सारे लोग मेरे बैचमेट्स है, क्योंकि 2002 में मैंने मेरा फर्स्ट यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था, और 2004 में मैंने मेरी पहली यूपीएससी आईएएस की सिविल सर्विसेज की मेंस दी थी। तो काफी सारे लोग, मतलब आप लोग, अभी मैं नाम नहीं लूंगा उनके, लेकिन काफी सारे लोग मेरे बैचमेट्स है, दोज हु आर एट दिस पोजीशन। तो हमारे टाइम पे गाइडेंस ही नहीं मिलती थी। सो मुझे गाइडेंस नहीं मिला, तो फिर मैंने क्या किया था, आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, मैंने 1 साल वेस्ट ना जाए इसलिए जर्नलिज्म किया, और मुझे इंटरेस्ट भी था जर्नलिज्म में, तो मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, और उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया प्रिपरेशन के लिए वगैरह। तो वो हिस्ट्री है। लेकिन आपको आज की डेट में देखो, मैं ऑनलाइन बैठा हूँ, मेरे घर में बैठा हूँ, आप अपने घर में हो, टेक्नोलॉजी के जमाने में हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। आप लोगों को वो सारी की सारी जानकारी जो है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, वो भी ऐसे व्यक्ति के हाथों से मिल रही है कि जिसने खुद इस एग्जाम को लिखा है, जिसने खुद स्पेसिफिकली एक लेवल तक इसको दिया है, असिस्टेंट कमांडेंट जैसी जो एग्जाम होती है यूपीएससी की, उसको क्वालिफाई किया है, उसमें अचीवमेंट है ऐसे, और जिसके हाथों से हजारों, मेरे 1000 से ज्यादा सेमिनार्स हो चुके हैं, लाखों से ज्यादा, लाखों मतलब 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं पूरे महाराष्ट्र में गाइडेंस कर चुका हूँ डिफरेंट सेमिनार्स के माध्यम से, और काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे अंडर में फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस आईपीएस बन चुके हैं। तो अगर आपको इस बात की समझ है और अहमियत है, इफ यू आर हैविंग इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, आप लोगों को हमारे जैसे व्यक्ति को फॉलो करना होगा, आप लोगों को कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ना होगा, आप लोगों को इस चीज को समझना होगा। आप अपने लाइफ के, रादर आई वुड से,
कि आपका जो ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का जो पीरियड है उसको बिल्कुल मत वेस्ट करो। मेरे पास अभी से मतलब मेरे पास अभी ऑनलाइन की बैचेस स्टार्ट हुई मेरी अप्रैल में 2020 में। महाराष्ट्र का मेरा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है जिसने ऑनलाइन क्लासेस चालू किए विदाउट वेस्टिंग टाइम इन अप्रैल 2020। और मेरे पास अभी फर्स्ट ईयर के इतने सारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको आईएससी बनना है तो मुंबई के ही कांदिवली, बोरीवली, पनवेल, उरण, खोपोली से मेरे पास स्टूडेंट है ऑनलाइन कोचिंग के लिए। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट 3 इयर्स के कोर्स के लिए मेरे पास जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए वो स्टूडेंट मेरे पास पूरे 1 साल के यूपीएससी के, एमपीएससी के कोर्स के लिए है। मेरे पास स्टाफ सिलेक्शन बैंकिंग के लिए 6 महीने के कोर्सेस होते हैं उसके लिए है। तो काफी सारे जो जेन्युइन स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको एक अपना करियर बनाना होता है वो लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं और फिर हम उनको स्ट्रेटेजिकली, प्रोफेशनली उनको बताते हैं, पढ़ाते हैं। हमारी पूरी ऑफिसर्स, सर्विंग ऑफिसर्स, एक्स ऑफिसर्स की और जो अच्छे बेस्ट पर्सनालिटीज है उनकी टीम है। तो हम लोग आपको शेप देने का काम करते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को या फिर इसको आपने समझ लिया और फिर काम करना शुरू किया तो आई वुड लाइक आई कैन एश्योर यू, आप में से कोई भी स्टूडेंट एट द एज ऑफ 22, ओके, मैंने 20-21 नहीं कहा है, एट द पॉसिबल एज ऑफ 22 आप आईएएस भी बन सकते हो, आईपीएस भी बन सकते हो, फॉरेन सर्विसेज में जा सकते हो, बैंक के अधिकारी बन सकते हो, एमपीएससी जैसी जो एग्जाम होती है उसमें से डिप्टी कलेक्टर डिवाइस भी बन सकते हो। या फिर आपको लगता है कि भाई बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस होगा और फिर मैं कैसे क्वालिफाई होगा, ये अगर थोड़ा सा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है तो आप अगर थोड़ी मेहनत लेने के लिए तैयार हो तो आप क्लरिकल लेवल पे भी जा सकते हो। देखो गवर्नमेंट की जॉब्स में आप क्लास 4 पे भी जाओगे तो आपकी आज की पेमेंट 25,000 प्लस है। और अगर आप क्लास 2 में जाते हो, क्लास 3 में जाते हो तो 35,000 प्लस है। क्लास 2 में जाते हो तो 50,000 प्लस है। क्लास 1 में जाते हो तो 1 लाख प्लस आपकी सैलरी होती है, अलॉन्ग विथ जॉब सिक्योरिटी जो प्राइवेट में आपको नहीं मिलती। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विथ a very important discussion of यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये मैंने कुछ जनरल बातें इसलिए आपको बताई क्योंकि ये जनरल बातें बताना बहुत आवश्यक होता है और काफी सारी माइन्यूट बातें होती है। तो हम थोड़ा सा अभी व्हाइट बोर्ड का उपयोग करेंगे जो मेरे जूम के सॉफ्टवेयर में है, उसका उपयोग करेंगे और उसके माध्यम से हम अभी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि what exactly, like what is exactly there in UPSC civil services examination. Just please excuse me for just 2 seconds. Okay, so I'm taking help of now this thing, and we are going for whiteboard. व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अलग अलग एग्जामिनेशन जो है वो क्या होती है और किस तरह से अलग अलग एग्जामिनेशन जो है हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस थिंग्स एंड once you know all these things you will feel very comfortable with these examinations. ये अगर आपने समझ लिया तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये जो एग्जामिनेशन है एज सच डिफिकल्ट नहीं होती है, बस इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ाई करना आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि आपके कॉलेज का नाम प्रगति है तो फिर आप लोग भी प्रगति के पथ पे जा सकते हो। तुम्ही लोक सुद्धा प्रगतीच्या पथावरती जाऊ शकता। तुमच्या नाव, कॉलेजचंच नाव प्रगती आहे आणि प्रगती तुम्ही कराल अशी अपेक्षा करतो। So let us start for UPSC Civil Services examination. Okay, see, we have UPSC. तुम्हाला दिसतंय हे डिस्प्ले होतोय तुमच्या याच्या समोर UPSC शब्द लिहिलाय, डिस्प्ले होतोय
येस Yes, सर. sir. ओके, ठीक आहे. माझा आवाज क्लिअर ऐकू येतो ना सगळ्यांना? येस सर, Yes, यू sir. ऑडिबल. ठीक हो, है, sir. ओके, चलो ठीक है, थैंक यू. सो फर्स्ट हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में थोड़ा बात करेंगे, फिर इसका मैं कंपैरिजन जो है वो बाकी जो एग्जाम्स होती है उसके साथ करूंगा. तो यूपीएससी सीएस, सीएस स्टैंड्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. ये एग्जामिनेशन भारत की सबसे डिफिकल्ट एग्जाम समझी जाती है, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. इसके और आणि त्यातल्या त्यात तर मराठी माणसांच्या डोक्यामध्ये तर इतका गैरसमज आहे या एक्झाम बद्दल, त्यातल्या त्यात मुंबई आणि या रिजन मधल्या, की अजूनही म्हणजे मुंबईच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात सुद्धा, ओके, इनफॅक्ट इन ऑल महाराष्ट्र वी कैन सी दैट देर आर सो मेनी मिसकंसेप्शंस अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, है ना. हमारे मतलब मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको जब बताता हूँ कि अरे यार तू तो अभी फर्स्ट ईयर में ही है, सेकंड ईयर में है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, तो वो बोलते हैं कि सर नहीं वो तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होती है. और फिर हमारे दोस्त बोलते हैं कि ऐसा डिफिकल्ट होता है, वैसा डिफिकल्ट होता है. एंड मैं पूछता हूँ कि आपके दोस्त ने दिया है क्या वो एग्जाम, या फिर आपके फैमिली में? नहीं सर वो दिया तो नहीं है, लेकिन उसको उसके दोस्त ने बताया था. सो दिस इज अ मेंटालिटी. ये क्या है कि हमने तो खुद उसका अनुभव नहीं किया, लेकिन हमने यह समझ लिया कि कितनी कठिन एग्जाम होती है. ठीक है. सो ये ऐसा हुआ कि हमने हमने हमें तैरना तो है, लेकिन तैरने के लिए हमें पानी में पैर रखने का ही डेयरिंग नहीं हो रहा है, तो हम तैरेंगे कैसे, है ना. जमीन पे तो हम तैर नहीं कर सकते ऐसे. सो ये ऐसा ऐसी 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 कुछ बातें यूपीएससी के बारे में है. तो यूपीएससी इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, ये बहुत सिंपल एग्जामिनेशन है. तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम होती है ना, उसमें 24 सर्विसेज है. ओके, देयर आर 24 सर्विसेज. ये सर्विसेज कौन सी होती है? तो एक आईएएस है, ओके, आईपीएस है, आईआरएस है. ठीक है. आईआरएस में एक है इनकम टैक्स और दूसरा है कस्टम्स. जिनको अगर आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, देन इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस है, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस है. ओके. देन वी हैव इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ओके, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस. ओके. ये रेलवे की 4 सर्विसेज होती है. ठीक है. काफी सारे लोगों ने रेलवे का जो ऑप्शन था वो सिलेक्ट किया था रेलवे का, लेकिन रेलवेज में 2 प्रकार की एग्जाम्स होती है. एक एग्जाम जो होती है वो रिलेटेड टू आपका जो आरआरबी की जो ग्रेड सी की जो एग्जाम होती है, ग्रेड सी की, वो एक एग्जाम होती है. और ये जो मैं बता रहा हूं इसमें से आप डायरेक्टली क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हो. मतलब अभी जैसे पुणे रेलवे डिवीजन है, तो वहां पे मेरा एक स्टूडेंट है डॉक्टर तुषाबा शिंदे, वो बहुत बड़े पोजीशन पे है. ओके. अभी रिसेंटली उसको रेलवे मिनिस्ट्री का अवार्ड भी हासिल हुआ. और जो मेरा एक दूसरा स्टूडेंट है वो सोलापुर डिवीजन में सेकंड हायरार्की पे है. तो अगर आप आरआरबी रेलवेज की अगर एग्जाम क्वालिफाई करते हो, ओके, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, तो आप ग्रुप डी और ग्रुप सी पोजीशंस पे जाते हो. लेकिन अगर आप यूपीएससी की क्वालिफाई करते हो तो आप लोग बहुत ही हाई लेवल के पोजीशन पे जाते हो. ओके. तो इस बात को, इस डिफरेंस को थोड़ा सा ध्यान में रखना. सो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज विच आर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन. उसके बाद हमें है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, ओके, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, एंड देन डेप्यूटी कलेक्टर, डीवाईएसपी इन यूनियन टेरिटरीज. हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें, उस यूनियन टेरिटरीज में डेप्यूटी कलेक्टर और डीवाईएसपी की पोजीशन. ओके. तो ये काफी सारी पोजीशंस है. अभी सारे पोजीशंस का मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है. अभी आप लोगों को शायद आईएएस के बारे में पता होगा. आईएएस एक ऐसा व्यक्ति है, मतलब एक ऐसा पोजीशन होता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसके माध्यम से अगर आप आईएएस सिलेक्ट होते हो
ओके, इफ यू गॉट सिलेक्टेड एज IAS ऑफिसर, ओके, और वो भी अगर आप 22 एट द एज ऑफ 22, मतलब आप में से अभी काफी सारे लोग फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन की और प्रिपरेशन करने के बाद अगर आप लोग IAS बन गए एट द एज ऑफ 22, तो ये बात समझ लेना कि आप लोग एट द एज ऑफ 56, 57 महाराष्ट्र जैसे राज्य के चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, CS। ओके, चीफ सेक्रेटरी स्टैंड्स फॉर CS, मुख्य सचिव। मतलब हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो हमारे पॉलिटिकल हेड होते हैं, और जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव, मतलब जो हमारा पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पूरा जो गवर्नमेंट होता है, उस गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े बॉस होते हैं वो होते हैं चीफ सेक्रेटरी। ओके, और फिर हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, होम अफेयर्स हो, एग्रीकल्चर हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनफैक्ट आपका जो कॉलेज है, तो ये जो कॉलेज है यह हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, और जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके जो सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर होते हैं, सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर होते हैं। ओके, तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है कि ऐसे हायर लेवल पे जाना है, तो यू नीड टू गो फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आपको UPSC सिविल सर्विसेज जो एग्जाम है, उस UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होगी। ओके, सो ये थोड़ा सा IAS के बारे में मैंने बताया। अगर आप IPS के पोजीशन पे क्वालिफाई होते हो, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, ओके, अगर आप IPS की पोजीशन पे सिलेक्ट होते हो इंडियन पुलिस सर्विसेज पे, तो इसको भी ध्यान में रखना कि अगर आपका सिलेक्शन IPS के लिए हो रहा है, IPS के लिए हो रहा है, और वो भी अगर 22वें साल में हो रहा है, तो आप DG पोजीशन पे जा सकते हो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मतलब संपूर्ण महाराष्ट्र का जो पुलिस फोर्स रहेगा वो आपके अंडर में कार्यरत रहेगा एट द एज ऑफ 56, 57। ओके, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है, ऐसा नहीं कि आपको 22वें साल में ही क्वालिफाई होना है या 23वें साल में ही क्वालिफाई होना है, या आपको एज लिमिट होती है UPSC में 32 इज द एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, 32, और फिर 35 फॉर OBC कैंडिडेट, और 37 फॉर SC ST कैंडिडेट। सो आप में से अगर आप IAS बनते हो 32वें साल में भी, तो भी आप अच्छे पोजीशन पे ही जाओगे। IPS भी अगर आप 32 के एज में बनते हो तो भी आप एटलीस्ट सेक्रेटरी पोजीशन पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर चीफ सेक्रेटरी पोजीशन पे या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पोजीशन पे जाना है, तो आप लोगों को अर्ली एज में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना आवश्यक है। ओके, अभी ये बाकी जो सर्विसेज है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे काफी लोग आप में से बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, तो काफी सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स को ये इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज के बारे में पता ही नहीं होता। हमें नॉर्मली क्या पता होता है कि जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा क्या अप्रोच होता है ना, कि हम लोगों को किसी CA के फर्म में हम लोग जॉब करते हैं। मुंबई में नॉर्मली ऐसे जॉब्स काफी लोग करते हैं, या फिर किसी कंपनी में हम लोग छोटा मोटा जॉब कर लेते हैं। हम लोग खुद को लिमिटेड करते हैं। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज में हुआ, तो आप लोग जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, ओके, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आता है, अलग अलग एक्टिविटीज में आता है, तो वो पैसा सपोज किसी डिस्ट्रिक्ट में आया, तो उस डिस्ट्रिक्ट में उस पैसे का किस तरह से नियोजन हुआ, वो पैसा अगर किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आया, तो उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किस तरह से उसका उपयोग हुआ, यह जो देखने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, यह इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज वाले ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन हमें कॉमर्स पढ़ने के बाद भी इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज के बारे में जानकारी नहीं होती। उसके साथ ही इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस है। मेरी एक स्टूडेंट है जिसका वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, स्वाति सुरभे, जिसका सिंपल बीकॉम हुआ था, मुंबई की स्टूडेंट है, बीकॉम किया था, बीकॉम के बाद फिर किसी ने बताया उसको UPSC की प्रिपरेशन के लिए, देन शी स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर UPSC।
उसने 4 से 5 गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दी केवल यूपीएससी थ्रू क्वालिफाई होने के लिए। ओके, इवन शी क्विट एमपीएससी थ्रू उसका सिलेक्शन हुआ था, शी क्विट दैट जॉब आल्सो। इंटेलिजेंस ब्यूरो बैंक में, कैनरा बैंक में वो प्रोबेशनरी ऑफिसर बनी थी, वो भी छोड़ दिया। एंड अल्टीमेटली शी क्वालिफाइड यूपीएससी एंड she got selected in Indian Defense Account Services. Now she is in Ghatkopar only in Mumbai itself. उसका भी रिसेंटली मेरे यहाँ पे लेक्चर हुआ था और उसने भी अच्छा मार्गदर्शन किया था स्टूडेंट्स को। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, आईएएस संबोधि न्यूज को सब्सक्राइब करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो शी इज नाउ इन इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज। आप समझ लीजिए कि आप लोग बीकॉम होने के बाद आप लोगों को क्या अपॉर्चुनिटी रहती है। आप सिंपली अगर किसी कंपनी में जाओगे, 10,000, 12,000, 15,000 हो गया 20,000, ओके, इसमें उसमें आप जॉब करोगे। यह जो लड़की है, यह महाराष्ट्र की फर्स्ट लेडी है, लेडी ऑफिसर है जो डिफेंस अकाउंट सर्विस में है। और इसके एडवाइस के सिवाय इंडियन नेवी इस रीजन में, इस मुंबई पेरीफेरी में कुछ भी परचेस नहीं कर सकती। अगर परचेस करना है तो हर एडवाइजर इंपॉर्टेंट, हर सिग्नेचर इज इंपॉर्टेंट। करोड़ों रुपए के जो भी इक्विपमेंट्स नेवी के लिए लगते हैं, इंडियन नेवी के लिए, तो दे कैन नॉट परचेस without her approval. Okay, because what? Because she qualified UPSC and she got selected in Indian Defense Account Services. Okay, तो ये ऐसे ही फिर इंडियन डिफेंस इससे सर्विस है, कॉर्पोरेट लॉ है, रेलवे की तो ये सारी सर्विसेज है। मेरा एक जूनियर था शिवाजी सुतार, वो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में सिलेक्ट हुआ, आई थिंक 2019 के बैच में। अभी ये जितने भी आपकी रेलवेज वगैरह, मुंबई की लोकल वगैरह जो बंद है या फिर ट्रेन बंद है, तो वो ही इज अ चीफ पीआरओ ऑफ सेंट्रल रेलवे। टीवी पे उसको सुन लेना या शिवाजी सुतार टाइप कर लेना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो लड़का उसका बहुत ऐसा हायर क्वालिफिकेशन नहीं था एंड मराठी मीडियम का स्टूडेंट था। मराठी मीडियम का स्टूडेंट होने के बाद भी उसने यूपीएससी क्वालिफाई की। आज ऐसे पोजीशन पे है कि उसके परमिशन बिना ये लोकल शुरू करना या फिर उसमें उसके डिसीजन मेकिंग में वो लड़का है आज। ओके, शिवाजी सुतार नाम नोट करके रख देना आप, ठीक है। तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज है ना, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, आपको केवल और केवल यूपीएससी एग्जामिनेशन ही दे सकती है। ओके, अगर आप आईआरएस सिलेक्ट होते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में, यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, यू कैन ज्वाइन एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एंड एक्साइज। आप असिस्टेंट कमिश्नर ज्वाइन होने के बाद 3 साल में आपका प्रमोशन होता है डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स। उसके 3 साल बाद आपका प्रमोशन होता है ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स। उसके 3 साल बाद एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स और उसके 3 से 4 साल बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये इंप्रूवमेंट भी है, मतलब ये प्रमोशंस भी है, टाइम बाउंड प्रमोशंस है, सैलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं, सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर्स है। सबसे इंपॉर्टेंटली आपके पास पावर्स है। अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है कि भाई मुझे फॉरेन कंट्रीज में अपना देश का एम्बेसडर बन के जाना है, ओके, सो यू थ्रू दिस एग्जामिनेशन यू कैन गो फॉर इंडियन फॉरेन सर्विसेज, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। और अगर आप IFS बनते हो तो आप भारत के रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका में रह सकते हो, इंग्लैंड में रह सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हो, किसी भी देश में आप भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बन के जा सकते हो। और भारत की जो अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी होती है उसमें आपका पार्टिसिपेशन होता है। तो दीज आर द ब्यूटीज ऑफ दीज पर्टिकुलर सर्विसेज। ये सारे, इसके बारे में आपको डिटेल में कोई नहीं बताएगा, ओके। और मुझे अभी सिंस मुझे टाइम कम है और स्पेसिफिकली मेरा ये सेमिनार केवल यूपीएससी के लिए नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि काफी सारे लोगों ने अपना बैंक, रेलवे ऐसी ही छोटी मोटी एग्जाम्स में इंटरेस्ट दिया था। बट नेचुरल है क्योंकि आप में से काफी सारे लोग कॉमर्स बैकग्राउंड या फिर इंश्योरेंस बैकग्राउंड्स के हो, तो इसलिए मैं उन चीजों को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूँ। अगर आपको फ्यूचर में मेरे कुछ सेमिनार्स, जो नियर सेमिनार्स अटेंड करने हैं, तो आपको अलग से उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। वेरी सुन वी आर ऑर्गेनाइजिंग 3 days वर्कशॉप ऑन स्पेसिफिकली यूपीएससी सेपरेटली, एमपीएससी सेपरेटली, ऐसा हम करने वाले हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये सारे सर्विसेज है, रेलवे की 4 सर्विसेज, ओके, इंडियन और फिर पोस्टल सर्विसेज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह वगैरह। सो अभी मैं ये छोड़ देता हूँ एंड वी आर मूविंग फॉर लाइक अनदर दिस थिंग, ठीक है। हम लोग
अभी एमपीएससी के सर्विसेज पे आते हैं। तो वंस मैं सर्विसेज आप लोगों को बता दूंगा, उसका कंपैरिजन बता दूंगा, एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल मूव फॉर स्टाफ सिलेक्शंस एंड बैंकिंग एग्जामिनेशन आल्सो। फिर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। ओके, सिलेबस हम डिस्कस करेंगे तो सिलेबस से आपको पता चलेगा कि प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है। अभी एमपीएससी के एग्जाम है, एमपीएससी में राज्य सेवा परीक्षा, एमपीएससीची परीक्षा बऱ्याचशा लोकांनी एमपीएससी सुद्धा मेन्शन केलेला आहे। तर एमपीएससीची राज्य सेवा परीक्षा, एमपीएससी मध्ये मग पीएसआय, एसटीआय, पोलीस सब इन्स्पेक्टर, सेल्फ टॅक्स इन्स्पेक्टर आणि मंत्रालय एएसओ। ओके, मंत्रालयामध्ये असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ। ओके, सो स्टेट सर्व्हिसेस, पीएसआय, एसटीआय, and then clerical examination, clerk, typist, okay, clerk, typist, tax assistant, okay, excise assistant, अशा त्या हे असतात। ओके, सो दिस इज एमपीएससी एग्जामिनेशन, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके लिए मैं फिलहाल एज बता देता हूँ। ये जो पीएसआई एग्जाम है, पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर, इसके लिए 31 जनरल कैटेगरी के लिए होता है, एंड 34 जो है वो सारे जितने भी बैकवर्ड्स है, ओबीसी, एससी, एसटी, बीजेएनटी, एसबीसी, उनके लिए होता है। ठीक है, बट बाकी जो एग्जाम्स है मतलब अदर देन पीएसआई, केवल पीएसआई को छोड़ के ये स्टेट सर्विसेज, एसटीआई, मंत्रालय, क्लर्क वगैरह, इनके लिए 38 है ओपन के लिए, और 43 है बाकी जितने भी बैकवर्ड कम्युनिटीज है उनके लिए। मेरे पास अभी रिसेंटली 2 टीचर्स ज्वाइन हुई है। एक टीचर है, उसका एज है 36, और दूसरी टीचर है, उसका एज है 38। ओके, 36 और 38, मतलब एक 35 है और दूसरी 38, 37, 38 है। ओके, सो देखो उनको भी मतलब दे आर ऑलरेडी सेटल्ड, उनको सैलरीज वगैरह अच्छी मिल रही है, लेकिन उनको अभी पता चल रहा है कि केवल सैलरी या केवल छोटी मोटी नौकरी करने से कुछ नहीं होता है, या अच्छी भी सैलरी मिल रही है तो उसमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता कुछ कुछ लोगों का। दे वांट सम काइंड ऑफ पावर, है ना। अधिकारों के लिए लोग आते हैं प्रशासन में। अधिकार बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। आपके पास अगर अधिकार है तो आपका खुद का भला तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप अन्य लोगों का, अगर आपके विचार अच्छे हैं, आपका आचरण अच्छा है, आपकी नैतिकता अच्छी है, तो यू कैन डू गुड, डू बेस्ट फॉर द सोसाइटी। हम बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट में काम नहीं होते। काम क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग अगर अच्छे विचारों के नहीं है और अच्छी तरह से उनको उनकी मानसिकता नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे। वो अगर भ्रष्टाचारी मेंटालिटी के है, करप्टेड मेंटालिटी के है, तो वो काम नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, तो बिल्कुल प्रशासन में आने की तैयारी रखो। इधर उधर घूमने में कोई फायदा नहीं है। ये आपको करियर तो देता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको खुद के साथ लोगों का भला करने की अपॉर्चुनिटी भी केवल सर्विसेज ही देती है। वो भले ही एमपीएससी हो, स्टाफ सिलेक्शंस हो, या फिर यूपीएससी हो, लेकिन उसके माध्यम से ही आप लोग अच्छे पोजीशंस पे जाके लोगों का भला कर सकते हो। सो एनीवे ये 3 एग्जामिनेशंस है और मैंने आपको ये बता दी उसमें। अभी इसमें से जो राज्य सेवा परीक्षा है ना, स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, through state services examination you can reach, okay, through state services examinations you can reach up to the position of deputy collector, उपजिल्लाधिकारी जिसको हम बोलते हैं उपजिल्लाधिकारी, ओके, देन उप पुलिस अधीक्षक, डेप्यूटी कलेक्टर, डीवाईएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। ओके, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तो सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना। जैसे तालुका होता है तो तालुका का तहसीलदार होता है, जैसे भिवंडी तालुका है तो तालुका का तहसीलदार। आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह निकालने की जरूरत होती है तो आप तहसीलदार ऑफिस में वगैरह जाते हो। ओके, कुछ लोग कलेक्टर ऑफिस से निकालते हैं। ठीक है, फिर डेप्यूटी कलेक्टर, उपजिल्लाधिकारी, डीवाईएसपी और एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तहसीलदार, उसके नीचे नायब तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, गट विकास अधिकारी, इसमें भी ग्रुप ए ग्रुप बी होता है। चीफ ऑफिसर, नगर पालिका मुख्याधिकारी, ग्रुप ए ग्रुप बी। ओके, फिर उसके बाद जैसे कैफो होता है, चीफ अकाउंटेंट एंड फाइनेंस ऑफिसर। उसके बाद डीडीआर होता है, उपनिबंधक, असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है। ठीक है, उसके बाद फिर डिप्टी कमिश्नर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, ये एक नई मतलब ये पुरानी पोस्ट है बट दैट इज एडेड, ओके, रिसेंटली।
और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट ऑफिसर्स है एंड डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर है, फिर ARTO है और काफी सारी है। ओके, असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स है, डेप्यूटी सी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला परिषद। सो ऐसी लगभग 29 सर्विसेज आपको एमपीएससी एग्जाम ऑफर करती है और 38 and 43 these are the age limits for MPSC state services examinations. Okay, now उसके बाद जो PSI की STI की जो बताई उसके लिए भी एज लिमिट मैंने बताया है आपको। इसके बाद हमारे पास स्टाफ सिलेक्शन की एग्जाम है। मैं पहले अपॉर्चुनिटीज बताता हूँ, फिर हम एग्जाम के पैटर्न पे चले जाएंगे। ओके, वी आर हैविंग स्टाफ सिलेक्शंस कमीशन एग्जामिनेशन। ओके, स्टाफ सिलेक्शंस, ओके, SSC स्टाफ सिलेक्शंस में मल्टीटास्किंग, अभी फॉर्म निकले देख लेना। आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट जो है 10th क्वालिफाई हो तो यू कैन अपीयर फॉर मल्टीटास्किंग एग्जामिनेशन। मल्टीटास्किंग के अभी 5 फरवरी को फॉर्म निकले हैं और उसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टाफ सिलेक्शन की वेबसाइट है ssc.nic.in। ओके, जिनको इंटरेस्ट है वो मुझे बाद में इस सेशन के बाद मैसेज कर सकते हो इसके डिटेल्स के लिए। इससे रिलेटेड एक बैच जो है वो हमारी अभी जस्ट कमिंग 7 से 8 दिन में चालू हो जाएंगी, ऑनलाइन बैच रहेंगी। तो आप लोगों को किसी को अगर इंटरेस्ट है तो आप स्टाफ सिलेक्शंस के मल्टीटास्किंग CHSL या ग्रेजुएशन बेसिक्स की जो एग्जाम है या फिर बैंक वगैरह उसके लिए ज्वाइन हो सकते हो, UPSC MPSC सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये स्टाफ सिलेक्शन की एक वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए मैं बताऊंगा आपको, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आए तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीटास्किंग 10th बेसिस पे। ओके, ये भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 25,000 सैलरी है आपकी। CHSL ये 12th के बेसिस पे होती है। ओके, और CGL जो है ये होता है ग्रेजुएशन के बेसिस पे। ओके, जो दोज हु आर ग्रेजुएट उनके लिए। एंड स्पेसिफिकली CGL जो एग्जाम होती है उससे आप ऑफिसर बनते हो, ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर और ग्रुप बी नॉन गैजेटेड ऑफिसर। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ग्रुप बी हायर लेवल का हो गया, नॉन गैजेटेड उससे थोड़ा सा सबऑर्डिनेट लेवल का ऑफिसर हो गया। ओके, सो इस तरह से ये स्टाफ सिलेक्शन क्या करता है ना कि जो लोग IAS IP मतलब जो लोग UPSC थ्रू क्वालिफाई होते हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल IRS बन गया, कोई स्टूडेंट IRS बन गया इनकम टैक्स में। ठीक है, तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि स्टाफ सिलेक्शन और UPSC के इसमें क्या फर्क है। जैसे UPSC क्वालिफाई करके कोई स्टूडेंट डायरेक्टली IRS बन गया, IRS में उसकी फर्स्ट पोजीशन रहेंगी असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स। स्टाफ सिलेक्शन का मल्टीटास्किंग भी छोड़ दो, CHSL भी छोड़ दो, उसमें से आप चतुर्थ श्रेणी